वेलकम टू माय चैनल एड्यूराइन। मैं हूं आपकी टीचर दीपिका और आज हम चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 3 का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन होती क्या है? A linear equation is an equation of a straight line. It is in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are the real numbers and a and b cannot be equal to 0 and x and y are the two variables. So this is a general form of linear equation, two variable. X and y are two variable where c is the constant and a and b are the respective coefficient of x and y. Pair of linear equation. This is the one equation, and if we have two such equations, then it will become a pair of linear equation. Two linear equations having two same variables are known as pair of linear equations in two variables, like a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Here you can see x and y are the two variables common in both the equation, but coefficients are different and constants could be different. So these are the general equations of the pair of linear equation. ठीक है, अब next है how to solve these equation, यानी solution of a pair of linear equation in two variable. जब दो variable की आपको linear equation given हो तो उसका आप solution कैसे निकालेंगे उसी के बारे में. The solution of a linear equation in two variable x and y is a pair of values, यानी one for x and other for y, which makes the two sides of the equation equal. यानी अगर आपको कोई equation given है उस equation में x और y variables की वो value जिनसे left hand side और right hand side equal हो जाती है वो उस equation का solution कहलाती है. So there are two methods to solve a pair of linear equation. That is, first is graphical and second is algebraic method. So इस चैप्टर में हम graphical, algebraic दोनों ही methods पे बात करने वाले हैं. तो चलिए पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में जानते हैं. ग्राफिकल मेथड यानी आपको ग्राफ पर सॉल्यूशन दिखाकर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपने सॉल्यूशंस बताने हैं. ग्राफिकल मेथड में पहला आता है यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पर और वो जो एक पॉइंट होगा वो उन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. इट इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. सो क्लियरली यू कैन सी, ग्राफ पर हम इस तरीके से दिखाएंगे. अगर ग्राफ पर वैल्यूज प्लॉट करने के बाद दो लाइंस आती हैं और वो दो लाइंस एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती हैं, सो दिस पॉइंट ये जो है ये आपका है यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, और इसे ही हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मेनी सॉल्यूशन. दो इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्यूशन कई सारे आए, तब क्या होगा? इफ द टू लाइन coincide with each other, then there will be infinite solution, as all the points on one line will be the solution of the pair of linear equation. It is said to be dependent or consistent pair of equation. You can see दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ मैंने एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया और जब मैंने देखा तो दूसरी लाइन उसके ऊपर कॉन्साइड कर रही है, बिल्कुल उसके ऊपर, तो एग्जैक्ट दोनों के सॉल्यूशन सेम है. सच इक्वेशन यानी यहाँ पर जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्व करने में. ओके, और इसे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलेंगे. थर्ड इज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन की बात, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन, as the lines are not intersecting at any point. So it is said to be an inconsistent pair of equation. See, these two lines are the solution of equation. मैंने solve की, plot किया तो मुझे कुछ ऐसी lines मिली जो आपस में कट ही नहीं करती हैं. These are parallel lines. So I'll write there is no solution of these pair of linear equation. So at that point, no solution will be the answer. Now let's start with the algebraic method. What is an algebraic method? Algebraically आप कैसे solve करेंगे linear pair of equations को? Algebraically तीन तरीके हैं. First is substitution method, second is elimination method, third is cross multiplication method. One by one I'll explain all the three methods. First is substitution method. Substitution यानी value को substitute करना. We have to choose any one equation and find the value of one variable in term of other variable, like y in term of x. Now substitute the value of x to get the value of y.
यानी एक इक्वेशन में से आप दूसरे की टर्म में एक्स वाई को इन टर्म ऑफ एक्स निकालिए और ऊपर वाली इक्वेशन में एक दूसरी इक्वेशन में वापस पुट कर दीजिए और सब्स्टिट्यूट करके फिर से सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. दिस इज नॉन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड विच इज वेरी कॉमन. लेट्स क्लियर इट विद एन एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स माइनस 4, जिसमें से आपको y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, जो सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू 7 मिलती है. अगेन इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जहां से आपको y की वैल्यू 3 मिलती है. ये हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सच अ नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल बिकम इक्वल. Now add or subtract the equation so that one variable will be eliminated and then solve the equation for the other variable. यानी दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी, उनके a1 और a2 या b1 या b2 कोई भी कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के आपने इक्वल करने हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई करके. जैसे ही कोफिशिएंट इक्वल हो गए, अब आप उन इक्वेशन का या तो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए और इक्वेशंस को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालिए. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों ही इक्वेशन में x के और y के कोफिशिएंट अलग हैं. सबसे पहले हमें इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है. तो मैं देख सकती हूँ अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे x के कोफिशिएंट्स इक्वल मिलेंगे. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में आपको क्लियर दिख रहा है, मुझे दो इक्वेशन मिल गई. अब मेरे x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम हो गए, y के मेरे डिफर करेंगे, नो प्रॉब्लम. सो x के सेम हो गए. अब मैं दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करूं या माइनस करूं. तो मैं देख सकती हूँ ऐड करने पर सिंपली मेरी x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और y की टर्म में मैं सॉल्व करके y की वैल्यू निकालूंगी, और जिसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड. आई होप इट्स क्लियर नाउ. थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड विच इज वेरी न्यू फॉर यू एंड इम्पॉर्टेंट टू. लेट्स लर्न अबाउट दिस. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर आप समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेसिकली क्या है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको वही दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होंगी, आपको इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे, आप लिखिए पहले x, y एंड 1. 1 इज द कॉन्स्टेंट, आपने 3 लिखनी है. फिर उनके नीचे b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2, ये आपने लिखना है. दिस इज अ मैथड कि आप कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए जब आपने x के नीचे लिखना है तो मैं क्या लिखूं, मुझे कंफ्यूजन रहेगी, मैम ने b1, b2, c1, c2 क्यों लिया. तो देखिए क्यों लिया, x के साथ a1, a2 होता है, आप इसको हाइड कर दीजिए, यू विल नॉट टेक दिस. तो रिमेनिंग कौन सा बचा, b1, b2, c1, c2 लिख दिया मैंने. y के साथ b1, b2 है तो मुझे b1, b2 को छोड़ना है. अब मुझे चाहिए c1, c2 और a1, a2. तो y के नीचे c1, c2 तो आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, a1, a2 लिख दिया. और फिर कांस्टेंट टर्म में मुझे c को छोड़ देना है, बचेगा a1, a2 एंड b1, b2. और a1, a2 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मुझे लिखना है b1, b2. अब इससे हम इक्वेशन सॉल्व करने का बनाएंगे कैसे, यानी ये तो तरीका था, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसको इसमें से, ये जो एरो हेड है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले आप डाउनवर्ड वाला इक्वेशन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस में अपवर्ड वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. तो अब ये वैल्यूज b1, b2 और c1, c2, a1, a2 आपको इक्वेशन में कोफिशिएंट में गिवन होगी. तो इसको याद करने का तरीका देखिए, आपने लिखनी है ये वाली इक्वेशन. आप सिंपल लिखेंगे x अपॉन में x, y और 1 लिखिए. इनके डिनोमिनेटर्स में लिखना है bc. आप b देखिए, ध्यान से देखिए इन वैल्यूज को, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ. bc माइनस bc, यहाँ पर ca माइनस ca, यहाँ पर ab माइनस ab. और वो मैं बता चुकी हूँ, x के नीचे क्योंकि x के साथ a होता है तो नीचे a नहीं आएगा, y के साथ b होता है तो यहाँ पे c और a आएगा, b नहीं आएगा, कांस्टेंट के साथ a और b आएगा. अब ये a b मैंने लिख दिए. अब मुझे ये नहीं याद रहता कि मैं पहले 1 लिखूँ, b2 c1 था या b1 c2 पहले था, क्या था. तो उसका तरीका ये है 12, 21. bc लिखिए, फिर लिखिए 12 और ये 21. 12, 21, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21. ये फॉर्मूला फंडा आप याद रखिए, और इनमें कौन से कोफिशिएंट्स को मैंने भूल जाना है वो याद रखना है, और सिंपली आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी. फिर आपने x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 को एक बार कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को सॉल्व करें और x की वैल्यू निकाल लें. और इसी तरीके से एक बार y वाले को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और वैल्यूज को सॉल्व करें.
नाउ लेट्स एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। यहाँ पर आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था वो वाले फॉर्मूले में आप इसे पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट x अपॉन में -2 इक्वल्स टू y अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1। अब यहाँ पर एक बार आप x वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार y वाली टर्म को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करके सॉल्व करेंगे और आपको x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू -2 एंड y की वैल्यू 5। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे इनके रिजल्ट्स की बाय रेशियो कंपैरिजन। सपोज आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हम रेशियो कंपेयर करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सोल्यूशन क्या होगा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम सोल्यूशन क्या होगा वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। देखिए, अगर इन इक्वेशन में डायरेक्ट आप इक्वेशन देखकर बता सकते हैं कि सोल्यूशन कैसा होगा आपको, और आप फिर बाद में चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक आया या नहीं। देखिए, अगर रेशियोज a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली वन सोल्यूशन होगा। यहाँ पर हम बोलेंगे इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ओनली वन सोल्यूशन। और एल्जेब्रिक की फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो इसे मैं कंसिस्टेंट भी बोलूँगी। ठीक है, अब यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने ली। अब अगर मैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मेरे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आता है, तीनों रेशियो के कंपैरिजन मेरे दोनों इक्वेशंस के इक्वल आते हैं, देन लाइंस विल बी कॉन्सिडेंट, यानी लाइन कोइंसाइड लाइन करेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और इसी को हम डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। नाउ अब थर्ड में a1 बाई a2 विल बी इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। लास्ट वाला इक्वल नहीं हो रहा, दो तो रेशियोज इक्वल हो गए, तो इस केस में लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस, ग्राफिकली लाइंस पैरेलल आएंगी और एल्जेब्रिकली नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और इसी को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए क्या कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है, किस केस में ये वैल्यूज आती हैं, क्या ग्राफिकली इनको हम बोलेंगे, कब लाइन पैरेलल्स होंगी, कब कंसाइड करेंगे, कब इंटरसेक्ट करेंगी। ये था पूरे इन जितने भी हमने मैथड सॉल्यूशन सीखे हैं उनको हम किस तरीके से हम यहाँ पर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कई बार आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि रिड्यूसेबल नहीं होंगे। देयर इज सम पेयर ऑफ इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर फॉर्म बाय सब्सटीट्यूशन। सो गिवन इक्वेशंस, जैसे कि आपको इस टाइप में कोई इक्वेशन मिल जाए जिसमें आप कहेंगे कि x और y तो वेरिएबल आ रहा है बट इसको मैं लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकती, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मुझे इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। सो मैं क्या करूँगी, वी कैन कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c, क्योंकि मेरी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है। सो उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लेट 1 बाई x इक्वल्स टू m एंड 1 बाई y इक्वल्स टू n, मैं यहाँ पर 1 बाई x को और 1 बाई y को एक और वेरिएबल से एज्यूम करके उसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगी, जिससे मेरी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ जाएगा। Now after substitution the equation will be am plus bn plus equals to c. Now it can be easily solved by any of the methods of solving linear equation। जो मैंने कोई भी मेथड ऊपर आपको बताया, आप किसी भी मेथड से फिर सॉल्व कर सकते हैं, वो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं। बट सब कंडीशन क्या है, हमें ये वाली जो जनरल फॉर्म है वो चाहिए, और वो अगर आपके पास नहीं है तो आप देखिए 1 बाई एक्स में अगर इक्वेशन है तो उसको एक और वेरिएबल से पुट करके और वापस एक इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनाइए, और इस इक्वेशन से अब हम फिर से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे किसी भी मेथड से। ओके, आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है इंट्रोडक्शन को किसी भी टॉपिक को लेके, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।